Hello student, welcome to our today's class. We have started our new chapter. The chapter name is How I Have Suffered. The chapter is written by the Carol Graffon. In this chapter we have seen that one maid is there whose name is Meta, and this story is all about her. Before this also we have seen the two videos on the same topic. Today we are going to see the next topic of this chapter. Till now we have seen that how was the Meta's nature. Meta was not a simple person. She was very difficult to please. She was never getting pleased by the small things, and she never compliment anyone. Okay, so after that let's see how the Meta was. Meta was not the type of the person who complimented people directly. When people heard good things about us through others people, we learned from our neighbors and friends that Meta took considerable pride in us. She was delighted by our progress and achievement. Our graduation from college, Edward's choice of bride, my marriage were all sources of happiness to her. One could never make this out by her reactions though. See, in this paragraph, what did say? यहाँ पे बोला गया है that Meta was not a simple person. She was वो बहुत अलग थी and she was never compliment others, और वो उसे खुश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था. लेकिन जो हमारे इस चैप्टर के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि हमें पता चला कि मेटा हमें कितना प्यार करते थे. वो मेटा ने कभी खुद से एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन मेटा को हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या था, प्राउड था. फिर वो एडवर्ड बोले तो एडविन बोले तो कौन है, अपने जो लेखक है उनके भाई का नाम है. ओके, उनकी शादी की बात हो, उनकी जो वाइफ की जो चॉइस थी उसकी बात हो, या फिर उन्होंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो हो, सब में मेटा को बहुत खुशी थी. मेटा बहुत चाहती थी और मेटा उन पे बहुत प्राउड फील करती थी. और ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी खुद होके नहीं बताई, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे लेखक जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर लेखक इज़ कैरोल ग्राफॉन. कैरोल ग्राफॉन को ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली, उनकी नेबर से. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. Here one incident had shown. See, in this picture there is you see one woman and one man. This man is no one the Edward, and this woman is no one than the Meta. Okay, so here is one incident which is going to explain by the Carol Graffon. So now let's see what was that incident. See, when Edward returned home after his discharge from the army, she greeted him at the door with a gruff, "What, you again?" With time we realized that she worried about us all the time, but her expressions of the concern was different from ours. उन्होंने बोला है कि मेटा किस तरीके से अलग टाइप की औरत थी. उन्होंने कहा कि वो अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करती थी, लेकिन वो दूसरों को बताती थी कि किस तरीके से शी वॉज फील प्राइड ऑन दैम. ओके, सो यहाँ पे यही उनका जो स्वभाव है इसको बताने के लिए एक इंसिडेंस बताया गया है कि एडवर्ड जो कि हमारे लेखिका का भाई है, वो जब आर्मी से डिस्चार्ज होके आए तो मेटा ने दरवाज़ा खोला और उसने नॉर्मल तरीके से उसका स्वागत नहीं किया कि अरे बेटा आओ आओ कितना अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट लाइक दिस. उसने कहा, अरे तुम फिर से आ गए. इस तरीके से उसने उसका स्वागत किया. लेकिन घर के सभी सदस्यों को पता था कि मेटा सबसे कितना प्यार करती थी. ओके, नाउ लेट्स सी. मेटा काइंडली ऑफर टू कम एंड लिव विथ मी व्हेन आई गॉट मैरिड. I was touched but had to decline, saying, Meta, we haven't really got much money right now. Who won't यहाँ पे बताया गया है कि मेटा जो है, मेटा को इन बच्चों से बहुत प्यार था. और लेखिका बताती है कि जब लेखिका की शादी हो गई तब मेटा खुशी खुशी लेखिका के साथ उसके घर रहने चली गई.
लेकिन लेखिका ने कहा कि देखिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और हमारा घर भी बड़ा नहीं है, तो आप हमारे साथ मत आइए, ऐसा उनको कहना था। लेकिन देखिए इसके ऊपर मेटा ने क्या कहा। मेटा ने कहा, हु वॉन्ट्स योर मनी? शी काउंटेड साउंडिंग ऑफेंडेड। I was really embarrassed then. Our apartment is teeny and there is no enough room for you. When I saw her expression, I hastily added, maybe after some time when we move into big apartment, you could come and live with us. Her expression changed. Okay, later then. I will take you good meal and take care of your house too. It is not easy to do it all by yourself. देखिए अब कैरल ग्राफॉन ने कहा कि भाई हमारा घर, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं। तो मेटा ने कहा कि किसे चाहिए पैसे। वो थोड़ा सा गुस्से में आ गई थी। तो ग्राफॉन ने कहा कि देखो हमारे पास बड़ा घर भी नहीं है, तो ऐसा करो, तो तुम्हारे लिए प्लेस भी नहीं है रहने के लिए, तो जब हम बड़ा अपार्टमेंट में चले जाएंगे तब आप उसमें आ जाना। तो मेटा ने देखा उनकी तरफ और कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तब तक मैं आपके घर की देखभाल करती हूँ और आपके लिए अच्छा सा खाना बना के देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप खुद से कर नहीं पाओगे। सो इसका मतलब क्या था कि मेटा डोंट वांट टू लीव द ग्राफॉन। ओके, सो इस तरीके से यहाँ इस इंसिडेंट से ये दिखाया गया है कि मेटा का कितना जान बसती थी उन दो बच्चों में। ओके, सो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट देन। It was not to be. Meta could never see our new apartment. New apartment. It's summer. She took a much delayed trip to her Germany. She wanted to visit her niece and nephew, whom she had never had the chance to meeting before. There she fell sick and died soon after. The news of her demise reached us. We were stunned. Our Meta could not die. We had thought she would be there always, just like grandmother's photograph on the drawing room wall. Meta was supposed to last forever while she grew up, got married, and had child. This was not right. I missed her and wished that she would somehow recover and return to us. ग्राफॉन ने कहा कि ग्राफॉन कहते थे कि हम जब न्यू अपार्टमेंट में जाएंगे तब आप आ जाना। लेकिन ग्राफॉन का न्यू अपार्टमेंट मेटा कभी देख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमेशा से उनकी जो डिले ट्रिप थी जर्मनी जाके अपने नीस और नेफ्यू से मिलने की, तो वो अचानक से उन्हें मिलने चली गई और वहाँ जाने के बाद शी गॉट इल। वो वहाँ पे बीमार हो गई और उसी में उसका देहांत हो गया। जब ये न्यूज़ लेखिका तक पहुँची तो लेखिका और लेखिका की फैमिली को ये बहुत ही बड़ा सदमा था। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेटा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनको मेटा की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो मेटा के बिना अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि मेटा यही कही है और वो चाहती थी कि मेटा जो है कुछ भी हो और कैसे भी हो जाए और मेटा रिकवर करे और मेटा वापस आ जाए। इस तरीके से मेटा के लिए जो लेखिका थी और लेखिका की पूरी फैमिली थी, उनका दिल टूट रहा था। After a few days, mother and I gathered courage to go through Meta's things. We went down to the room with a heavy heart to put her things away and see if there was anything we could send to her family in Germany. We could sense her presence and become increasingly aware of the vacuum that she had left behind. यहाँ पे बताया गया है कि मेटा की डेथ की न्यूज़ आई, सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस चीज़ को एडजस्ट करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्राफॉन और ग्राफॉन की मदर मेटा के रूम में गए और उन्होंने एक हिम्मत जुटाई उसके सामान को देखने की, कि उनका ये अप्रोच था कि अगर कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं जो कि मेटा ने रख छोड़े होंगे तो वो उसकी फैमिली को भेजने के लिए जर्मनी।
तो और जब वो उनके रूम में गए तो उन्हें मेटा ऐसा लग रहा था जैसे मेटा यही कहीं पे है, और मेटा की जो कमी थी उन्हें बहुत ज़्यादा खल रही थी. ओके. We opened the trunk and stood sad and silent in the corner. Strangely, it wasn't locked. We finally found her treasure that she protected so fiercely. Picture of the Edward and me at various ages, my old jump rope, our engagement and marriage announcements, Gigi's dog collar were all there straining back at us. Each and every gift we had given her over the years was carefully wrapped in tissue paper, tied up with the original ribbon. It was as it was being going through layer of our lives packed in the trunk. जब उन्होंने मेटा का ट्रंक ओपन किया तो वो बहुत ज़्यादा सैड थे और एक कोने में जाके खड़े हो गए, और वो सरप्राइज़ हो गए कि मेटा का जो भी ट्रंक था इट वाज नॉट लॉक्ड, उसे लॉक नहीं लगाया गया था, जबकि मेटा उसे किसी छूने नहीं देती थी. उसका वो ट्रेज़र था. और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम मेटा का ट्रेज़र ओपन करके देखा, और देखते हैं तो क्या, वहाँ पे सारी चीज़ें जो थी, एडवर्ड और कैरोल के जो बचपन की तस्वीरें थी, कैरोल की जो एक स्कीपिंग रोप थी, गिगी जो उसका फेवरेट डॉगी था उसका कॉलर था, बोले तो पट्टा जो रहता है वो वहाँ पे रखा था, मैरिज के फ़ोटोज़, मैरिज के अनाउंसमेंट के फ़ोटोज़, काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेटेड टू अपनी जो लेखिका है और लेखिका की फैमिली जो है उससे रिलेटेड थे. अभी तक के जितने भी गिफ्ट्स दिए थे उससे, वो सारे गिफ्ट्स उसने क्या करे थे, पैक करके वैसे के वैसे रखे थे. ओके. सो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि कैरोल और एडवर्ड का जो बचपन है उसी को उन्हें क्या करके रखा है, ऐसे परतों में वहाँ पे पैक करके रखा है. ओके. Memories come flooded back to me. There was a heavy leather pouch at the bottom of the trunk with a note pinned to it. To Eddie and Carol. I leave all my money, Meta. The pouch had a little over $6,000, her saving of the past 40 years. It was more than all my possessions put together. वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें कैरोल ओपन करके देख रही थी, तब कैरोल ने देखा कि नीचे एक लेदर का पाउच पड़ा है. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ये पाउच दिख रहा है, एक ऐसा एक क्या बोलते हैं इसको, एक थैला दिख रहा है. इस थैले में उसमें एक चिट्ठी भी पिन की हुई थी, और उस चिट्ठी में लिखा था कि ये जो सारी मेरी जमा पूंजी है ये मेरे फेवरेट, मेरे प्यारे बच्चे एडी और कैरल के लिए है. ये मेरी सारी ज़िंदगी भर की कमाई है, जो कि टोटल कितने थे, $6,000 थे. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो पैसा है, मैं एडी को और कैरल को देना चाहती. इस तरीके से उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है. आप इस फ़ोटो में देख सकते हो कि वो चिट्ठी पढ़ते हुए ये जो छोटी बच्ची जो कैरल है कितना रो रही है, और उसकी मम्मी भी. यहाँ आप देख सकते हो एक गिफ्ट दिख रहा है जो कि रिबन में क्या हुआ है, बंधा हुआ है. ओके. दिस ऑल द गिफ्ट्स आर गिफ्टेड बाय द कैरल एंड कैरल्स फैमिली टू द मेटा, बट मेटा वॉज नेवर यूज्ड इट. Okay, she kept it safely for her favorite Addie and Carol. Every single $2 was folded inside the original card. We sat there in a long and rapt silence. I looked at mother. She was weeping silently. I could not find my voice. Deep inside me, a voice rose. Oh, Meta, you never could spell my name right. I broke down and wept. Unshamed. Why did you have to go without telling us? देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने के बाद उसके वो जो पैसे थे, जो $6,000 थे, ओके, $6,000 थे, वो सारे पैसे जो थे उसकी पेमेंट थी, जो हर महीने जो कैरल की फैमिली उसे देती थी. वो जो पेमेंट मिलता था उसको वैसे के वैसे रैप करके उसने क्या किया था, उस सैक में रखा था. ओके. और ये सारी चीज़ें देखने के बाद कैरल और कैरल की मम्मी दोनों भी साइलेंट हो गए थे
कैरोल ने अपने मम्मी की तरफ देखा, उसकी मम्मा रो रही थी। ओके, कैरोल की आवाज़ भी रुंधा गई थी, उसको भी रोना आ रहा था। कैरोल ने, आपने देखा होगा कैरोल का नाम यहाँ पे क्या लिखा है, के से लिखा हुआ है। कैरोल का नाम सी से शुरू होता है। कैरोल ने कहा कि ओ बेटा, तुम कभी भी मेरा नाम सही से नहीं पुकारती हो, क्योंकि उसने फिर से उसका नाम कैरोल लिखा था, के से लिखा था, और वो फूट फूट के रोने लग गई। इस तरीके से होल फैमिली वॉज मिसिंग मेटा लॉट। और यही है इस चैप्टर का सार कि हाउ आई हैव सफ़र्ड। यहाँ पे यही बोला गया कि मेटा के जाने के बाद जो लेखिका है हमारी, वो किस तरीके से हर्ट हुई, कैसे सफ़र हुई, यही सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? इफ़ यस, then we will see the exercise in our next class. Till then, bye bye.